मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू Mathological. In this session, we will be discussing questions on binomial theorem that have appeared in IPMAT examination in previous years. Start करते हैं session, and if you've not already subscribed to the channel, then make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon, and you can also message me on Telegram at ADITYAKT. So first question is from IPMAT 2022. The sum of the coefficients of all the terms in the expansion of 5x minus 9 to the power 4 क्या होगा? Sum of the coefficients of all the terms in the expansion of 5x minus 9 to the power 4. तो द सिंपलेस्ट वे इज जब भी हमें सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालना है इन एनी एक्सपेंशन, सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन दिस केस बिकॉज देयर इज ओनली वन वेरिएबल दैट इज इक्वल टू x. x इक्वल टू 1 पुट कर दो इन 5x minus 9 to the power 4. So at x equal to 1 this will be equal to 5 into 1 यानी 5 minus 9 to the power 4 which is 4 to the power 4 which is 256. So the answer will be 256. 256 will be the answer. लॉजिक क्या है कि 5x minus 9 to the power 4. Okay, so this will basically be maximum power. यहाँ पे x का कितना होगा? Maximum power will be equal to 4 x to the power 4 because 5x minus 9 to the power 4 है. Ultimately this is 5x minus 9 into 5x minus 9 into 5x minus 9 into 5x minus 9. तो maximum power can be equal to 4 और minimum power होगा 0 जबकि सारे constant terms multiply होंगे. So this will be basically something like a into x to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e. और हमें चाहिए सम ऑफ कोफिशिएंट्स यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का वैल्यू क्या होगा, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है. सो इफ वी वांट टू नो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सो अगर हम x इक्वल टू 1 पुट कर दें इन दिस इक्वेशन, तो x टू द पावर 4 भी इक्वल टू 1 होगा, x क्यूब भी इक्वल टू 1 होगा, तो हमें अल्टीमेटली a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई मिल जाएगा. तो दैट इज वाई वी पुट x इक्वल टू 1. तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है हमारा 4 टू द पावर 4, राइट हैंड साइड हो जाता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एंड हेंस the sum of coefficients is equal to 4 to the power 4 which is equal to 256. ओके, अब इसको प्रॉपर्ली एक्सपेंड करके भी देखते हैं. क्वेश्चन तो खत्म हो गया बट एक बार प्रॉपर्ली एक्सपेंड करके भी देखते हैं कि प्रॉपर्ली अगर एक्सपेंड करेंगे तो दिस विल बेसिकली पावर 4 है तो 4c0 टाइम्स 5x टू द पावर 4 प्लस 4c1 टाइम्स 5x क्यूब इंटू माइनस 9 टू द पावर 1 प्लस 4c2 टाइम्स 5x होल स्क्वायर्ड minus 9 to the power 2 plus 4c3 times 5x to the power 1 into minus 9 whole cube and finally plus 4c4 times 5x to the power 0 and minus 9 to the power 4. This will be our total expansion. Isn't it so? ठीक है. So 4c0 is equal to 1 into 5 to the power 4 which is equal to 625. तो 625 times x to the power 4 plus 4c1 इंटू 5x क्यूब इंटू माइनस 9 टू द पावर 1 यानी कि माइनस साइन बाहर आ जाएगा. 4 इंटू 5 क्यूब, 5 क्यूब इज इक्वल टू 125 इंटू 4 500 इंटू 9 माइनस 4500 एक्स क्यूब प्लस 4c2 इज 6 इंटू 25 150 150 इंटू 81. ठीक, 150 इंटू 81 कितना आ जाएगा? 150 इंटू 80 विल बी 1200 प्लस 150 तो 1350. सॉरी कवर कर दिया. 150 इंटू 8 होगा 1200 तो 150 इंटू 80 विल बी 12,000. सो 12,150 एक्स स्क्वायर माइनस नेक्स्ट हम आएगा 4c3 इंटू 5 इंटू 9 क्यूब. 4c3 इज 4, 5 इज इक्वल टू 1, 4 इंटू 5 इज 20, 20 इंटू 729 तो 14580 टाइम्स एक्स एंड फाइनली प्लस 4c4 is 1, 9 to the power 4 which is 6561. So this is our complete expansion. और हमें सम ऑफ कोएफिशिएंट्स चाहिए 625 minus 4500 plus 12150 minus 14580 plus 6561 which will ultimately come out to be equal to 256. ठीक है, अपने एंड पे चेकआउट कर लेना. ठीक है, 625 plus 12150 कितना आ गया? 12,775 फिर 6561 तो 18,775 19,275 19,336 और माइनस 14,580 plus 4,500. So 14,580 plus 4,500 that will be 18,580 19,080 and hence this will be equal to 256. Okay, ठीक है. बस एक
सिंपल केस ले लिया, अदरवाइज स्ट्रेट अवे हमें क्या करना है, क्वेश्चन में x = 1 पुट करना है और आंसर निकालना है। इतना लंबा प्रोसेस थोड़ी फॉलो करना है, बट समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If three consecutive coefficients of the expansion of x plus y to the power n are in the ratio 1:9:63, तो value of n क्या होगा? Three consecutive coefficients in the expansion of x plus y to the power n are 1:9:63. तो x plus y to the power n को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? एक्सपेंशन हमारा सेम लॉजिक जैसे पहले एक्सपेंड किया था, तो nc0 इंटू x to the power n y to the power 0 प्लस nc1 इंटू x to the power n minus 1 y to the power 1 प्लस nc2 x to the power n minus 2 y square and so on एंड सो ऑन। ठीक है, बीच में कई टर्म आएगा एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर, एंड लास्ट टर्म विल बी एन सी एन एक्स टू द पावर 0 वाई टू द पावर एन। और क्वेश्चन हमें कह रहा है कि थ्री कॉन्सेक्यूटिव कोफिशिएंट्स का रेशियो है, दैट इज 1:9:63, थ्री कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। सो टर्म्स कुड बी एन सी आर माइनस 1, एन सी आर एंड एन सी आर प्लस 1। okay, NCR minus 1, NCR and NCR plus 1, and ratio is given as 1:9:63. So we can say that NCR upon NCR minus 1, this is equal to 9/1, and similarly NCR plus 1 upon NCR is equal to 63/9, which is equal to 7/1. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके n और r में हमें दो इक्वेशंस मिलेगा, दोनों को सॉल्व करके हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एंड NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, फ्रेश पेज पे लिखते हैं दोनों इक्वेशंस को, NCR अपॉन NCR माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9, NCR अपॉन NCR माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 9, एंड NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, एंड NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1, r माइनस 1 ब्रैकेट में रहेगा, तो इफेक्टिवली दिस विल बी n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिवली दिस विल बी इक्वल टू r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। सो r फैक्टोरियल इज बेसिकली r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r। ठीक है, सो r माइनस 1 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में n माइनस r फैक्टोरियल, सो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इज बेसिकली n माइनस r प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। So this part will get cancelled out. इक्वेशन हमारा हो जाएगा n माइनस r प्लस 1, एक सेकेंड, so this equation will be equal to n minus r plus 1 upon r, this is equal to 9. So n minus r plus 1 is equal to 9r, n becomes equal to 10r minus 1. This is our first equation, n is equal to 10r minus 1. Similarly NCR plus 1 upon NCR, this is equal to 7. ठीक है, ये इक्वेशन हमारा आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, बच गया हमारा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल विच इज n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1 इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। सो इक्वेशन हो गया हमारा n माइनस r अपॉन r प्लस 1 and this is equal to 7. So n minus r is equal to 7r plus 7, and hence as per this equation n is equal to 8r plus 7. n is equal to 8r plus 7. दोनों इक्वेशन से n को इक्वेट कर दो, तो 8r plus 7 this is equal to 10r minus 1. So 2r is equal to 8 and hence r is equal to 4. And if r is equal to 4, तो n क्या आ जाएगा, n is equal to 10 into 4 minus 1, which is equal to 39. So n comes out to be equal to 39. This will be our answer. क्या है क्लियर? ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर?
39 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस जो कि बाइनोमियल थ्योरम से बेस्ड आए थे इन IPMAT एग्जामिनेशन। इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी बातें सारी की सारी समझ में आई होंगी। फिर भी कहीं डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।